Good morning, students. I am Pratima Bharadwaj. So, in the last class, we were discussing about the balanced diet and the food groups and nutritive values of food, right? So, we will continue that class today. So, food groups, classification of food according to nutritive value. Okay, two classification we have done in the last class. This is the next classification of food according to nutritive value. So first is cereals and millets, pulses and legumes, nuts and oilseeds, milk and milk products, meat, fish and other animal products, vegetables, fruits, egg, fats and oils, sugar and its products, spices and condiments. So first is cereals and millets. So cereal include wheat, rice, while millets include jowar or bajra. Okay, means jowar and bajra and ragi. Okay, so what are the cereals? Wheat, rice, and what are the millets? Jowar, bajra, ragi. Cereals are the cheapest and widely available sources of energy. Cereals are good source of carbohydrate, calcium, iron, B complex, vitamin. Okay, so what is happening here? Cereals are the most cheapest available source for the energy. Okay, then cereals are good source for carbohydrate, calcium, and iron and B complex vitamins. Okay, so this cereals rich the carbohydrate, calcium, iron, B complex, vitamin contents. Okay, so these are the cereals and amount of carbohydrate, amount of protein, and amount of fat present. Okay, so first is rice, parboiled and mild. So what is the amount of carbohydrate? 79. Then protein 6.4. Then fat is 0.4. Okay, then for the wheat 71.2, 11.8, and fat is 1.5. Then for the wheat flour whole 69.4 and 12.1 protein and the fat is 1.7. Then bajra carbohydrate level is 67.5, protein 11.6, fat 5.0. Then for the barley 69.5, protein 11.5, fat 1.3. Then for the ragi, carbohydrate is 72, protein is 7.3 and fat is 1.3. Then for the jowar 72.6, protein is 10.4 and fat is 1.9. Okay, so for the all sources we will see like this a table for the amount of carbohydrate, protein, fat or any content which reach in that food. Okay, so second is pulses and legumes. Pulses are rich sources of protein. Okay, pulses are what? That is the source of protein, and the various pulses and legumes commonly used in India. So some commonly used in India pulses we will see what are that? Bengal gram, black gram, cowpea, green gram, lentil, and soya bean. Okay, so these are the commonly used in India. Else than protein, pulses also contain B complex vitamins. Okay, pulses have proteins. Okay, that is the source of protein. But rather than that, there is also present what B complex vitamins also content. Okay, so content of B complex vitamins also present in the pulses. So pulses and the legumes. So these are the this is the table of amount of pulses and legumes, carbohydrate, protein, and fat amounts. Okay. The next is nuts and oil seeds. Nuts contain high amount of fat and are good source of protein and vitamin also. Okay. Nuts are what?
In nuts, high amount of fat present and that are good sources for the protein and vitamin also. Okay, and nuts and oil seeds are concentrated source of energy. What are that? Nuts and oil seeds are concentrated source of energy. Okay, then oil seeds are used for extraction of oil. ओके, ऑयल सीड्स क्यों यूज करते हैं? सोयाबीन का ऑयल होता है, कैसे करते हैं? सोयाबीन के सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, सो ऑयल सीड्स आर यूज्ड फॉर extraction of oil. Then the residue obtained after extraction of oil is high in protein and is used for feeding program. Okay, क्या बोल रहे हैं कि ऑयल सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, और फिर बाद में उसे हम यूज़ करते हैं. जैसे सोयाबीन का बड़ी खाते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें क्या होता है? पहले उसके सीड से क्या ऑयल निकाल लिया जाता है, बाद में जो बचा हुआ रहता है उसका वो बड़ी बनता है. ठीक है, फिर भी उसमें प्रोटीन होता है. ठीक है, और जैसे नीम के भी बीज से क्या निकालते हैं? उसका तेल निकालते हैं. ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है? ऑयल सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, फिर बाद में उसे क्या फीडिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं, मतलब सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं ना हम नॉर्मली किचन में खाना बनाने के लिए. ठीक है, देन सो दिस इज अ टेबल फॉर द नट्स एंड ऑयल सीड्स. प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अमाउंट्स. Then next is milk and milk products. Milk is said to complete food. Okay, मिल्क को क्या बोला जाता है? कंप्लीट फूड बोला जाता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटीन, कैल्शियम एंड नियरली ऑल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन. क्यों बोला जाता है? पता चल गया मिल्क को कंप्लीट फूड, क्योंकि उसमें प्रोटीन, कैल्शियम और सभी टाइप के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं. बट लैक्स आयरन एंड विटामिन सी. ठीक है, लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं होता उसमें? किस चीज़ की कमी होती है? आयरन और विटामिन सी उसमें प्रेजेंट नहीं होता है. देन ह्यूमन मिल्क इज कंपैरेटिवली लो इन प्रोटीन एज कंपेयर टू एनिमल मिल्क. ओके, क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन क्या होता है? लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल मिल्क. सो दिस इज द टेबल फॉर द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स. सो मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स contain carbohydrate, protein, fats amount. The next is meats, fish and other products. Animal products like meat, poultry and fish provide high biological value protein, vitamin B complex, especially vitamin B12, which is absent in plant फूड्स. ठीक है, क्या बोल रहा है? एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, पोल्ट्री एंड फिश क्या करता है? हाई बायोलॉजिकल वैल्यू में, मतलब हाई लेवल में प्रोटीन प्रोवाइड करता है. ठीक है, और क्या प्रोवाइड करता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली कौन सा बी कॉम्प्लेक्स? विटामिन B12. ठीक है, विच इज एब्सेंट इन प्लांट फूड, जो कि क्या होता है? प्लांट फूड में एब्सेंट होता है. ठीक है, प्लांट फूड में B12 नहीं पाया जाता. Then next is vegetables. Vegetables are major source of energy, minerals and vitamins. The green leafy vegetables like palak, fenugreek, drumstick are rich sources of calcium, iron, beta carotene and folic acid. ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पे? वेजिटेबल्स में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स है किसका? विटामिन्स और मिनरल्स का. और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, फेनुग्रीक, ड्रमस्टिक, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, बीटा कैरोटीन एंड फॉलिक एसिड. सो दिस वेजिटेबल्स मस्ट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सब फूड कंटेंट को लेना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि क्या करते हैं उसमें फॉलिक एसिड और कैल्शियम का ज़रूरत होता है. फॉलिक एसिड और कैल्शियम का टैबलेट देते हैं, इसलिए ऐसा फूड कंटेंट लेना चाहिए जिसमें फॉलिक एसिड और कैल्शियम पहले से प्रेजेंट हो. देन रूट्स एंड ट्यूबर्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, याम आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट्स. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? रूट्स यानी कि जो जड़ है ना, रूट्स हैं. और क्या है? ट्यूबर्स है, जैसे कि क्या है? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, याम. ठीक है, ये सारे क्या है? गुड एनर्जी
प्रोवाइड मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना, हमारे डाइट के सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स है। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो अदर वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल्स, लेडी फिंगर्स, फ्रेंच बीन्स, टोमेटो एटसेट्रा एड्स वैरायटी टू अवर डाइट। दे ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, और भी जो वेजिटेबल्स हैं, ब्रिंजल्स, लेडी फिंगर्स, फ्रेंच बीन्स, टोमेटो, ये सब चीज़ें भी क्या है, हमारे डाइट के लिए वैराइटीज़ हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ अमाउंट में कोई ना कोई एसेंशियल मिनरल और विटामिन प्रोवाइड करते हैं। सो first table is for the leafy vegetables and second table is for the roots and tubers. Okay, then next is for the other vegetables. Okay, then next is fruits. Fruits are good sources of vitamins and minerals. Yellow colored fruits and vegetables are good sources of beta carotene. Citrus fruits provide good amount of vitamin C. So seasonal fruits must be included in diet. ठीक है, क्या बोल रहा है? फ्रूट्स क्या है? गुड सोर्स है किसका? विटामिन और मिनरल्स का। जो येलो कलर का फ्रूट और वेजिटेबल्स होता है वो क्या है? बीटा कैरोटीन का अच्छा सोर्स है। और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ना, मतलब जो खट्टे फ्रूट होते हैं जिसमें सिट्रस एसिड होता है, वो क्या करता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, विटामिन सी प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? सीजनल फ्रूट भी लेना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट में सीजनल फ्रूट भी इंक्लूड करना चाहिए। जैसे क्या होता है, समर के सीजन में क्या मिलता है? मैंगो, है ना, तो अकॉर्डिंग टू सीजन मिलता है ना, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, ये क्या है? सिट्रस फ्रूट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी लेना चाहिए। सो दिस इज द टेबल फॉर द फ्रूट्स। टेबल में क्या है, क्या क्या पाया जाता है और कितने अमाउंट में पाया जाता है, ये चीज़ है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन नोट दैट कैरोटीन, विटामिन, राइबोफ्लेविन। The next is eggs. It is such an animal food which provides high biological value protein. Raw egg contains anti-nutritional factor like avidin, which binds with biotin and makes it unavailable. Cooking and boiling destroys this anti-nutritional factor. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एनिमल फूड, जैसे कि ये क्या है? इट इज सच एनिमल फूड। एग क्या होता है? एनिमल फूड है ना। ठीक है, देन विच प्रोवाइड्स हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? हाई प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और जो रॉ एग है, मतलब जो कच्चा अंडा है ना, तो जो रॉ एग है वो क्या पाया जाता है उसमें? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है, जैसे कि एविडिन। ठीक है, जो कि क्या करता है? बायोटीन के साथ में जाके बाइंड हो जाता है और उसको अनअवेलेबल बनाता है। ठीक है, और क्या करता है? कुकिंग एंड बॉइलिंग डिस्ट्रॉयज दिस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है? कुकिंग और जो बॉइलिंग है ना, कुकिंग और बॉइलिंग कर देते हैं जब एग को, तो वो क्या करता है? वो जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो क्या हो जाता है? उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 100 ग्राम ऑफ एग कंटेन 13.3 ग्राम प्रोटीन एंड प्रोवाइड 173 kcal ऑफ एनर्जी। ठीक है, 100 ग्राम एग है, वो कितना प्रोटीन प्रोवाइड करता है? 13.3 ग्राम, और एनर्जी कितना प्रोवाइड करता है? 173 किलो कैलोरी। एग इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट फूड बट इट लैक्स एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको भी कंप्लीट फूड बोला जाता है। ठीक है, बट क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है, अब मेन फैक्टर इसमें याद रखने वाला ये है कि रॉ एग हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है ना, जो न्यूट्रिशन है उसको भी वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? बायोटीन के साथ ऐड हो जाएगा और उसको क्या कर देगा? अनअवेलेबल कर देगा। ठीक है, तो बॉईल करके या फिर कैसे भी कुक करके प्रिपेयर करके ही खाना होता है। देन फैट्स एंड ऑयल्स। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स बटर, घी, vegetable oil,
like a groundnut oil, coconut oil, सोयाबीन ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, क्या है ये? दिस कैटेगरी इंक्लूड, ये फैट एंड ऑयल्स है वो क्या इंक्लूड करेगा? बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ठीक है, एंड फैट्स एंड ऑयल्स आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? कंसनट्रेटेड सोर्स है एनर्जी का। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड। क्या प्रोवाइड करता है? एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल फैट कंजप्शन एज इट्स एक्सेसिव इनटेक लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, वी ऑल नो कि फैट हमें क्या लिमिट में ही कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या होगा? ओबेसिटी होगा और कार्डियोवास्कुलर डिसीज कॉज कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज अ टेबल फॉर फैट्स एंड ऑयल्स। The next is sugar and its products. Sugars and its products are rich carbohydrate sources. They act as sweetening agent. They are essential source of energy. ठीक है, क्या है? शुगर और जो उसका प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, और वो क्या करते हैं? स्वीटनिंग एजेंट है, मीठा करते हैं, है ना खाना को। एंड दे आर एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। And this is a table for the sugar and that's product. Then spices and condiments. These are compounds which are used for flavoring foods and to increase its palatability. Spices and condiments which are used for flavoring are chilies, black pepper, coriander, green chilies, and turmeric. Turmeric and garlic have antibacterial property. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ठीक है, स्पाइसेस मतलब वी ऑल नो चिली, है ना, और कॉन्डिमेंट्स मतलब जो और अदर हम यूज़ करते हैं, जो फ्लेवर के लिए हमारे फूड में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या किसको किसको यूज़ करते हैं एज अ फ्लेवर के लिए? चिली, ब्लैक पेपर है ना, काली मिर्च, कोरिएंडर, ओके, इट मीन्स धनिया, एंड ग्रीन चिलीज, then turmeric. Okay, turmeric and garlic have antibacterial property. turmeric और garlic में क्या होता है? antibacterial property होता है। then use of food groups. So these are the use of food groups. So first is it helps health professional or dietitian to assess and screen nutritional status. ठीक है, किस में हेल्प कर रहा है? हेल्थ प्रोफेशनल और डाइटिशियन को एसेस करने के लिए और न्यूट्रिशनल स्टेटस को स्क्रीनिंग करने के लिए ये जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं और डाइटिशियन हैं उनको हेल्प होता है। ठीक है, देन इट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। ओके, देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज टूल फॉर द न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ठीक है, फूड ग्रुप्स को और किस लिए यूज़ किया जा सकता है? न्यूट्रिशनल एजुकेशन देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग थेराप्यूटिक डाइट टू द पेशेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पेशेंट को थेराप्यूटिक डाइट एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करता है। देन इट इज़ यूज्ड फॉर फूड लेबलिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? और किस लिए हेल्प होता है फूड ग्रुप का? फूड को लेबलिंग करने में और उसके सर्विलेंस सिस्टम में। ओके, सो वी हैव डन द बैलेंस डाइट. Okay, hope you will like it and you will understand this. Thank you.